So, good evening, students. Now, today I will take the 13th lecture on the series of deflection of beam. And in this topic, we will discuss the problem based on the general loading conditions, right? So, the problem, or you can say problem based on the general loading condition, that is direct formula, right? So our topic is today, that is problem based on the direct problem based on the direct, right? So this is our topic today, problem based on the direct formula, right? So understand first. So problems which are based on the direct formula, you can say that is based on the general loading condition. So it means that first of all we must try to understand, so what are the general loading conditions in the different type of beams. So ये जो problems that we will calculate or we will find out the solution of these problems. So these based on the general loading conditions, and these problems can be solved by using the direct formula. So first of all we will understand what is the general loading condition. तो क्या क्या आपकी जनरल लोडिंग कंडीशन हो सकती है. So you can say what is the general loading conditions. What are the, you can say what are the general loading conditions, right? तो general loading conditions क्या होंगी? So you can say that in case of cantilever beam, first I will talk the cantilever beam, either simply supported beam, or you can say cantilever beam and the simply supported beam I am taking here. So in this case, see, you know the general loading conditions means क्या होगा इसमें, that is cantilever beam क्या है, you are this, first I will take in case of cantilever beam, right? तो अगर मैं कैंटिलीवर बीम की बात करता हूं तो कैंटिलीवर बीम में अगर फर्स्ट केस लेते हैं, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, राइट? सो दिस वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम. तो इसमें जो पहली अपनी जनरल लोडिंग कंडीशन होगी, तो पहली जनरल लोडिंग कंडीशन क्या होगी इसमें, दिस इज वन एंड इज फिक्स्ड and the other end is free. This is the cantilever beam. So you can say, suppose this is your A and this end is C. So first condition होगी when the point load, so this is the point load W, when the point load W is acting at the free end, right? So this is the first general loading condition in case of cantilever beam, means the point load, that is L, is the length of the beam, and EI, this is called the flexural rigidity, that should be constant. ये constant होनी चाहिए, right? EI is constant. So W is acting at the free end of the beam. This is the first general loading condition. अगर second की बात करें तो cantilever beam में second जो loading condition क्या होगी, when the UDL load is acting, means you can say this is your beam, this is your cantilever beam. So second case I will take, what is the general loading condition here? जे भी general loading condition आपकी हो सकती है, कौन सी? Just like a rectangle, UDL. So this is when the UDL load
तो ये आपका यूडीएल लोड है. सो दिस यूडीएल. So this is the second general loading condition, right? When the UDL load is acting. Third loading condition इसमें क्या आएगी? What is the third loading conditions? That is when this is length L. Third loading condition is when UVL load is acting. So these are the three, you can say, general loading condition in case of cantilever beam. Now if I will talk to the सिंपली स्पोर्टेड बीम, तो सिंपली स्पोर्टेड बीम में भी ऑल दीज कंडीशंस आर देयर. मींस पहले तो होगा सिमेट्रिकल सिंपली स्पोर्टेड बीम. मींस इन दैट केस यू कैन से द लोड दैट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द बीम. द लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द बीम. सो दिस इज द वन जनरल लोडिंग कंडीशन. Second one is when the load is not acting at the center of the beam, or you can say this is the unsymmetrical loading. So unsymmetrical loading के केस में क्या होगा कि लोड जो आपका है वो बीम के सेंटर में नहीं होगा. उसका भी फार्मूला हमारे पास है. When the load is acting the center of the beam, you know the formula. When the UDL load is acting on the beam, simply supported beam की बात कर रहा हूं मैं. So when the UDL load is acting on the simply supported beam, so you will get the formula there. So you can say these are some examples of the general loading conditions. These are some examples of the general. ये बना देता हूं मैं आपको. तो ये फिर कैंटिलीवर बीम आप ले लीजिए आप. दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, राइट. तो इसमें दिस इज आल्सो वन ऑफ द जनरल लोडिंग कंडीशन. कौन सी जनरल लोडिंग कंडीशन होगी, राइट. तो ये भी आपकी एक जनरल लोडिंग कंडीशन होगी इसमें. मीन्स दिस इज कॉल्ड द यूवीएल. ये आपका यूवीएल लोड हो गया, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट. तो ये आपकी जनरल लोडिंग कंडीशन क्या है, यूवीएल है, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, राइट. सो दीज आर द जनरल लोडिंग कंडीशन. अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करूं मैं, तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगी आपकी, इट इज जस्ट लाइक दिस. दिस इज योर यू कैन से this is your simply supported beam. One end is hinged, right, and you can say other end is having the roller support like this. तो इसका जो लेंथ है, जहां तक जो लेंथ होगा, दिस इज इक्वल टू L, right. The length is L. EI is constant here. This is called the flexural rigidity. And I will say that the load is acting at this point. This point is B. So that is acting at the center. That is Ly2 and Ly2, right? So when this load is acting at the center, this is one general loading condition. Second, हम इसमें कौन सी ले लेंगे, simply supported beam with the unsymmetrical loading. Means when this load is not acting on the center, what is acting at some distance, that is also one of the general loading condition. UDL is also general loading condition. So these are the general loading conditions, and we have the direct formula. We have derived the direct formula for all these general loading conditions. You understand? And if we want to find the slope as well as the deflection at some point, right? So you can use the direct formula. You can use the direct formula for calculating the maximum slope and deflection at the point, right? At some point. तो अगर मैं इसे कैंटिलीवर की बात करूं, तो मैं कहता हूं कि at the free end, if I will ask you find the maximum slope and the deflection. So maximum slope and the deflection का जो फार्मूला हमारा फ्री एंड के ऊपर, we know that formula, we have derived that formula. In case UDL also, we have derived the formula. In case of UVL, we have derived the formula. And likewise, simply supported beam, मैंने सिर्फ एक ही डायग्राम जहां पे ड्रा किया. I don't want to waste the time, as you know, everybody know about that. तो ये एक लोडिंग कंडीशन मैंने यहाँ पे दिया. This is a symmetrical loading condition, means when the load is acting at the center of the beam. तो इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला वी हैव राइट. एंड देन
यू आर हैविंग द लोडिंग कंडीशंस व्हेन द यूडीएल लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, उसका भी हमारे पास फार्मूला वी हैव ड्राइव्ड। एंड अनसिमेट्रिकल लोडिंग का क्या मतलब होगा कि ये जो पॉइंट लोड है, दिस इज नॉट एक्टिंग ऑन द सेंटर बट इट इज एक्टिंग एट सम डिस्टेंस। So you can say these are some loading conditions, these are the examples of some loading conditions which I told you, and all these loading conditions जो बीम की ये जो different loading conditions हैं, इन सभी के हमने डायरेक्ट फार्मूला जो है वो क्या है, ड्राइव किए हैं। यू अंडरस्टैंड? तो अगर आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली इट इज लाइक दिस, इफ इट इज लाइक सेम प्रॉब्लम, सो वी कैन calculate the slope as well as the deflection by using the direct formula by putting the value of W and L, क्योंकि जितनी भी ये लोडिंग कंडीशंस होंगी इसमें जो आपका फार्मूला होगा, W मीन्स वेट, L इज द लेंथ, सारे फार्मूले इसी आपको टर्म्स में मिलेंगे। W की वैल्यू भी होगी, L की वैल्यू भी होगी, एंड यू ओनली सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ W and L and you can get the slope as well as the maximum slope as well as the maximum deflection where you want to calculate it. You understand? But these are the some cases जहां पे जो फार्मूले आपको दिए हैं, ये आपको दिया है, अगर कैंटिलीवर की बात करूं तो जहां पे अगर फ्री एंड के ऊपर आपका लोड है, यूडीएल लोड है, तो अगर हमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एट द फ्री एंड हमें कैलकुलेट करनी, तो वी आर हैविंग द फार्मूला। लाइकवाइज वी आर हैविंग द फार्मूला इन द सिमेट्रिकल, ये जो आपकी लोडिंग कंडीशंस हैं, हमने जहां पे मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, वी हैव द फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम है वो क्या है कि वी हैव टू मेमोराइज द फार्मूला। हमें इन फार्मूला को, जितने भी ये फार्मूले हैं जो हमने डायरेक्ट ड्राइव किए हैं, अगर आपने डायरेक्ट प्रॉब्लम्स फार्मूला लगा के डायरेक्ट स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है, तो हमें ये फार्मूले जितने भी हैं ये हमें टिप्स में होने चाहिए, टोटल मेमोराइज होने चाहिए और इनके बारे में। सो इसलिए मैं इनका एक सेपरेट आपको एक टेबल बना के जहां पे बता देता हूं, सो दैट आप नोट डाउन करें और इन सभी फार्मूले को आप एक यू कैन से एक प्लेस के ऊपर बुक एक जो आपकी नोटबुक है वहां पे इसको इकट्ठा करके लिख लें, सो दैट आप पहले इनको मेमोराइज करें, रिमेंबर करें, और जो भी आपकी कंडीशंस होगी, लोडिंग कंडीशन होगी, जैसे भी हिसाब के बीम होगी, जो भी उसमें लोडिंग कंडीशंस होगी, तो आप उस फार्मूले को यूज करके यू कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एंड द स्लोप, यू अंडरस्टैंड, डिफ्लेक्शन एज वेल एज द स्लोप। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फार्मूले जो हैं वो सारे हम एक टेबल बनाते हैं और सारे फार्मूलों को एक जगह के ऊपर लिख देंगे, सो दैट आपको मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यू विल गेट ऑल द फार्मूला इन वन प्लेस, राइट? सो एक टेबल बना लेते हैं हम। राइट, इस तरीके से टेबल बना लेंगे। राइट, तो फर्स्ट आ गया लोडिंग, कैसा होगा, जे आपका आ गया थीटा मैक्सिमम एंड दिस इज योर वाई मैक्सिमम, राइट? तो पहले हम कैंटिलीवर बीम लेते हैं, राइट?
तो फर्स्ट वी विल टेक द कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का फार्मूला लिख लेते हैं। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, one end is fixed and this is your point A। फर्स्ट आपका आ गया पॉइंट लोड। अगर आपकी कैंटिलीवर बीम है तो पॉइंट लोड W है एट द फ्री एंड, राइट। सो इट्स लेंथ इज L, जो इसकी लेंथ होगी जहां से लेके जहां तक, दैट इज L। और जो फ्लेक्चुरल रिजिडिटी है दिस इज EI, ये आप कांस्टेंट रखेंगे। फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इज कांस्टेंट, राइट। तो इसका जो फार्मूला था जो हमने ड्राइव किया है, दैट इज थीटा मैक्सिमम क्या होगा, WL² अपॉन 2EI, and y maximum in case of this is WL³ upon 3EI, right? This is the first case। अब आप सेकंड केस ले लीजिए। इसमें यह हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड। कैंटिलीवर बीम, राइट। This is this is your free end, and we will take the UDL load। कौन सा लोड ले लेंगे हम, UDL लोड ले लेते हैं, UDL लोड। सो UDL लोड, U सो दिस UDL लोड मीन्स क्या लोड होगा इसमें, लेंथ इसकी भी इसकी भी कितना है, L है। जहां पर भी EI इज कांस्टेंट, EI क्या है, कांस्टेंट है। लोड है आपका W, लोड क्या है, W पर मीटर, W पर मीटर। लोड इज W पर मीटर, राइट। तो इस केस में जो आपका होगा फार्मूला क्या होगा, अगर UDL लोड है आपका, ये कौन सा लोड हो गया, या आप इधर लिख लो UTL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द कैंटिलीवर बीम। And if we want to calculate the maximum slope and the maximum deflection at the free end, its formula is WL³ upon 6EI and WL4 upon 8EI. This is the maximum deflection. This is the maximum slope. In case of UDL, WL³ upon 6EI, and this is your maximum deflection, that is WL4 upon 8EI. Now third condition we can take it। थर्ड कंडीशन हम क्या लेते हैं, third condition is uniformly bearing load। If there is a uniformly bearing load, means this is a cantilever beam, this point is A, and suppose we have the load like this, so this is your uniformly
This is the uniformly bearing load, that is UBL. मीन्स कौन सा है? दिस इज योर UBL, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड. इट्स लेंथ कितना है? इसका लेंथ भी जहां से लेके जहां तक कितना है? L आपको दिया है. लोड इज W एंड दिस इज यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड. फ्लेक्चुरल रिजिडिटी, आई एम जस्ट टेकिंग द फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इज कांस्टेंट फॉर एवरी बीम हियर. तो आप कह सकते हैं EI, दिस इज जो आपका EI है, that is the flexural rigidity, this is constant, right? तो इसमें क्या होगा? this is equal to WLQ 124 EI and deflection is WL4 upon 30 EI, right? So this is the deflection. This is the this maximum slope, that is WLQ upon 24 EI, and the maximum deflection is that is WL4 upon 30 EI, right? Now the next one is movement, you can say. So if the couple is acting, so this is your cantilever beam, same conditions, everything is same, only at the free end. So you can say only at the free end, this is the end A, only at the free end, the couple M, you can say this is the couple M, this is acting at the free end, the couple is acting moment. तो इस केस में अगर आपका कपल एक्ट करेगा तो उस केस में जो आपका स्लोप होगा, दिस इज इक्वल टू M into L upon EI, एंड जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, दिस इज ML स्क्वायर अपॉन 2EI. डिफ्लेक्शन इज ML स्क्वायर अपॉन 2EI. डिफ्लेक्शन इज ML स्क्वायर अपॉन 2EI. सेम L इज द लेंथ ऑफ द, L क्या है? L आपका इसका लेंथ है बीम का, और EI भी जहां पे क्या है? कांस्टेंट है. तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन. तो जस्ट अंडरस्टैंड हियर. देखिए मैं ये सारी चीजें एक जगह के ऊपर लिख रहा हूं, सो दैट व्हेन वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स और यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो आपको ये सारे फार्मूले एक जगह के ऊपर होने चाहिए, सो दैट यू कैन मेमोराइज इट इन ए बेटर वे. तो आपके पास अगर चार्ट इस तरीके से आपने बनाया होगा तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो उसका फ्री एंड के ऊपर WL स्क्वायर अपॉन 2EI, WL क्यूब अपॉन 3EI फॉर द फ्री एंड, एंड इफ देयर इज ए UDL इट इज WL क्यूब अपॉन 6EI. डिफ्लेक्शन इज WL4 upon 8EI. In case of UVL, uniform varying load, your slope is WL cube upon 24EI, and your this deflection is WL4 upon 3EI. And in case of the couple, this is equal to ML square this is ML upon EI, and your this स्लोप इज दिस, राइट. अच्छा, अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा टेबल को, बिकॉज आई हैव लेस स्पेस, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं. ये होगी चारों जनरल कंडीशंस मैंने ले ली इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम. अब आप देख लीजिए सेम, ये जहां पे ये सेम आएगा, दैट इज लोडिंग थीटा मैक्स
एंड वाई मैक्स, राइट। तो अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यू आर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम वी विल ड्रा। तो सपोज थोड़ा सा ये कम हो गया, तो दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम। So this is your simply supported beam, and the load that is acting at the center of the beam, that is the load W. This is a symmetrical loading. तो डेफिनेटली जो जहां से लेके जहां तक जो लेंथ होगा इसका, दिस इज L/2, और ये जो लेंथ है दिस इज L/2। तो मीन्स कह सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज L, W is the load that is acting on the center of the beam. So its slope is WL square upon 16EI, and this slope क्या होगा, WL square upon 16EI, and the deflection is WLQ upon 48EI, right? 48EI. This is in case of the simply supported beam when the load is acting on the center. Now the next case is, that is the simply supported beam when it is UDL load. Simply supported beam with UDL load. तो ये ड्रा कर लेते हैं हम। ये आपका गया simply supported beam with UDL load. The load is UDL. जी आपका आ गया UDL लोड। तो L इज द लेंथ, राइट। सो दिस इज योर स्लोप इज WL, स्लोप इज WLQ, स्लोप आपका आ गया WLQ upon 24EI, and the deflection is 5/384 WL4 upon EI, right? So this is in case of your UDL load. In case of simply supported beam, your maximum deflection is WLQ upon 24EI, and your maximum deflection is this one. तो अगर अनसिमेट्रिकल लोडिंग की बात करूं मैं, सेम बीम है उसमें आपकी अनसिमेट्रिकल लोडिंग है, तो उस केस में क्या फार्मूला होगा? अनसिमेट्रिकल लोडिंग के केस में क्या होगा? ये आपकी क्या है, बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। राइट, तो अनसिमेट्रिकल लोडिंग है आपकी, मींस अनसिमेट्रिकल लोडिंग का मतलब होगा कि वो सेंटर में नहीं है। ये लोड आपका P है, ये तो लोड था W पर मीटर, ये लिखा नहीं मैंने, राइट।
तो जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है, दिस इज आई विल से द डिस्टेंस इज ए, एंड जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है बी है, तो इस केस में डिफ्लेक्शन जो आपकी होगी वो क्या होगी, W इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 3EI, राइट। सो दीज आर सम जनरल लोडिंग कंडीशंस जिनके हमने डायरेक्ट फार्मूला, वी नो दैट वी हैव ड्राइव्ड द डायरेक्ट फार्मूला देयर, राइट। तो ये तो हो गया आपका जहां पे लिख दिया आपने, राइट। नाउ इन ऑर्डर टू understand the concept that how we can use these formulas, this we have to see, because we are not getting the problem exactly same type as it is given. Some problems are entirely different, or you can say they are having the slightly different conditions. So we are not getting the exactly same type of problem, but there is somewhat, you can say, slightly different with the given formulas. And if you want to calculate, if the problems which are slightly different, they are not exactly the same, their conditions are somewhat different. So this thing we have to learn first, that how we have to find the ways that how we can use the formula for calculating that type of the problems which are having slightly different conditions, which are not the same, exactly same what is written or given in the this table here. जहां पर तो exactly same है कि this is your cantilever beam, अगर आपका पॉइंट लोड जहां पे है तो उस वक्त हमारा J होगा। ये आपका कैंटिलीवर बीम है, अगर यूडीएल आपका फुल लेंथ के ऊपर है, एग्जैक्टली फुल लेंथ के ऊपर है, और आपने अपना मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए फाइंड आउट करना है, तो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द यूवीएल एंड दिस इज आल्सो ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द बीम, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए, तो उसका ये डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है। इसी तरीके से यू आर हैविंग द कपल and that is also at the free end, तो फ्री एंड के केस में कपल है, स्लोप आपने फ्री एंड के ऊपर निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अपने फ्री एंड के ऊपर निकालना है, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला। नाउ कम टू दिस सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर बात करें, तो पहला फार्मूला था कि अगर आपका लोड दैट इज एक्टिंग एट द सेंटर एंड यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर हियर, तो मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. So this is the exact formula, right? When the load is acting at the center. Likewise, when it is having the full length UDL load, well, full length of the beam UDL load, then the maximum deflection और जो maximum आपका maximum deflection और maximum जो आपका slope होगा, this is the formula. When it is having the unsymmetrical load, तो ये formula. ये हो गया जो आपकी जनरल लोडिंग कंडीशंस थी, जो कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जनरल लोडिंग जो फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग फार्मूले हमारे ने ट्राई किए। व्हाट हैपेंस, समटाइम्स वी हैव टू कैलकुलेट दोज प्रॉब्लम्स वेयर यू विल नॉट गेट द एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ कंडीशंस। यू अंडरस्टैंड दैट? यू विल गेट द डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट कंडीशंस, but the formula we have to use this. Now this we have to learn, this we have to see that how we can use this formula for calculating the slope and the deflection of the beam in the slightly different condition, not exactly like that. So this concept we have to learn first, right? तो जहां पे कुछ केसेस मैं लूंगा जिसमें मैं आपको हर केस का 1 by 1 उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, राइट? तो जी आप नोट कर लीजिए, आई थिंक दिस इज क्लियर। जी आप एक जगह के ऊपर मैंने लिख दिया है सारा, यू जस्ट चेक इट, कोई फार्मूला कोई गलती से मैंने लिख ना दिया हो, अदरवाइज दीज आर द फार्मूला, दिस आई हैव रिटन एंड दैट इज रिटन ऑन वन प्लेस सो दैट यू कैन मेमोराइज इट वेल, राइट? अब ये तो जहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम है, अगर इस टाइप की एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने फार्मूला ड्राइव किया, तो सीधे आप क्या कीजिए,
W की और L की वैल्यू फार्मूले में पुट करें। आप देखिए सभी फार्मूले, जितने भी फार्मूले हैं उसमें W और L, लोड और लेंथ दिया है। You have nothing you have to do, simply you have to put the values and you will get the result. You understand? अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें क्या है कि अगर इफ आई एम गेटिंग द स्लाइटली डिफरेंट कंडीशंस, अगर थोड़ी सी कंडीशंस जो है इसमें चेंज होती है, उस वक्त हमें ये देखना है, उस वक्त हमें ये लर्न करना है, हमें समझने की कोशिश करनी है कि हाउ वी कैन यूज दिस फार्मूला सो दैट वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम स्लोप एज वेल एज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द स्लाइटली डिफरेंट कंडीशंस। तो देखिए सो यस, देखिए इन ऑर्डर टू यूज these formulas for the slightly different conditions, not exactly the same one which is given in the table। जो मैंने टेबल आपको दिया था, अगर उससे कोई कंडीशंस डिफरेंट होती हैं तो उस वक्त हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर जो केस फर्स्ट था जो मैं आपको बताया, अगर कैंटिलीवर की बात करूं मैं केस फर्स्ट का, तो वो क्या था कि ये आपका फिक्स एंड है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम एंड पॉइंट लोड, दिस इज द, ये आप ले लीजिए पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट सी आ गया, राइट। तो आप पॉइंट ए के ऊपर आप जो लोड है ये W लोड एक्ट करता है, और जहां से लेके जहां तक जो इसकी लेंथ है वो क्या है, LI है। और इसमें तीसरी कंडीशन क्या थी, EI इज कांस्टेंट, यही थी, क्या था, EI, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इज कांस्टेंट। So this is a simple condition which is exactly that is given in your formula. तो अगर ऐसा केस था, right, and you want to find the maximum slope as well as the maximum deflection at this point A, at the free end, right? तो आपको पता है कि स्लोप निकालने का इस केस में थीटा मैक्सिमम, जब आपके पास सीधा फार्मूला था WL² अपॉन 2EI and the deflection is WLQ upon 3EI, राइट। तो क्या करेंगे आप, L की वैल्यू आपको दिया होगा, लेंथ आपको दिया होगा, लोड आपको दिया होगा, तो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द मैक्सिमम स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन, राइट। ये तो था एग्जैक्टली जो आपका सेम फार्मूला था जिसके ऊपर हमने फार्मूला ड्राइव किया था, जिस कंडीशन के ऊपर हमने फार्मूला ड्राइव किया था, दिस इज द सेम कंडीशन। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ W and L in the given formula and you will get the maximum slope as well as the maximum deflection, right? So this is clear to you. But if I say, अगर मैं सेकंड केस, एक केस लेता हूं जहां पे केस सेकंड की बात करता हूं, सपोज इफ यू आर हैविंग ए केस लाइक दिस, ये आपका क्या है, कैंटिलीवर बीम है, right? This is the cantilever beam and this end is A, this is your free end, तो मैं इसको A के रखता हूं, this end is free, but I will say that the load is not acting here but it is acting at this point on the beam, load is acting suppose यहां पे B के ऊपर, right?
ये लेंथ आपकी ए है और ये जहां से लेके जहां तक लेंथ आपकी बी है, राइट। सो लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट। अब मुझे बताइए, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। सो बी रख लो और ये लेंथ आपकी ए है। क्वेश्चन आपको आता है, तो प्रॉब्लम इज लाइक दिस, बट आपको क्वेश्चन आता है कि आप थीटा मैक्सिमम कहां पे? ए के ऊपर निकाल लिए और बाई मैक्सिमम ये भी आपका कहां पे होगा? ए के ऊपर होगा। फाइंड आउट करें। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द प्रॉब्लम इज पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट बी। कहां पे एक्ट कर रहा है? पॉइंट बी के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो जहां पे पॉइंट लोड एक्ट करता है उसका फार्मूला तो हमारे पास है, उसका तो हमारा पास फार्मूला है। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम थीटा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डब्ल्यू जहां से लेके जहां तक, यू फॉरगेट अबाउट दिस लेंथ, मतलब इसको इस तरीके से बना लीजिए आप, सॉरी, जहां से फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट, मतलब ये आपका क्या है? बी है, राइट। और इसके ऊपर डब्ल्यू लोड है, इसके ऊपर ये पॉइंट बी इधर लिख लीजिए, बी है, ये लोड आपका डब्ल्यू एक्ट करता है। और जहां से लेकर जहां तक लेंथ कितनी है? बी लेंथ है, राइट। बी इज द लेंथ। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसका थीटा बी निकालना है, थीटा बी, ये तो आप निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज द फार्मूला यू आर हैविंग। वो आपका आ जाएगा W इंटू एल की जगह क्या है? बी है, बी स्क्वायर अपॉन 2EI एंड वाई वी क्या होगा? W इंटू बी क्यू अपॉन 3EI। तो कहने का मतलब ये है, इसकी EI इज द फ्रैक्चरल रिजिडिटी। कहने का मतलब यह है कि थीटा बी एंड वाई वी यू कैन कैलकुलेट व्हेन द लोड इज लाइक दिस। You can calculate the value of the slope at point B and the deflection at point B because it is exactly like this. The load is acting at this point, जहां पे आप निकाल सकते हैं, just like this when the load is acting at the free end. But problem is there that the load is acting somewhere on the beam and we have to find the maximum and slope and the deflection at the free end where the load is not acting. So we cannot use this formula directly. We have to just understand the way that how we can calculate the slope at this point A when the load is not acting at the point A but load is acting somewhere on the point B. So फार्मूला तो यही लगेगा, बट इसको कैसे लगाना है, व्हाट आर द वेज, दिस वी हैव टू सी, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। तो ये चीजें हमें, जहां पे इसके कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक था, इसी टाइप के जो स्पेशल केसेस हैं डायरेक्ट फार्मूला के, कि डायरेक्ट फार्मूला लगा के अगर ये स्पेशल केसेस बीच में आते हैं तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो एक तो ये केस हो गया, एक तो ये आपका केस हो गया कि लोड इज नॉट एक्टिंग एट द फ्री एंड बट द लोड इज एक्टिंग एट द पॉइंट बी। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्यों पढ़ते हैं इसका भी अभी आपको पता चलेगा। व्हाई आई वांट टू टेल यू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी आर अगेन स्टडिंग हियर। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। जहां तक आपको क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट कंडीशंस आपको मिलेंगी। तो उन कंडीशंस को आपने क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व इट। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ
Principle of superposition. So what is this? In your previous lectures which I have given on the stress and strain, we have discussed the principle of superpositions there. वहां पे क्या डिस्कस किया था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इफ मोर देन one load, means 2 loads, 3 loads are couple, they are acting at one point, they are acting all together at one point, and we want to find the stress as well as the deformation, then how we can calculate? कैसे करेंगे हम? स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन जो होगी, क्या करेंगे हम? जितने आपके पास सपोज करो 2 लोड दिए हैं, या एक लोड, एक आपका मूवमेंट है, कपल दिया है वहां पे, तो सेपरेटली वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन. फर्स्ट हम विद द लोड निकाल लेंगे और फिर हम जो कपल वहां पे दिया है उसके साथ निकाल लेंगे, एंड देन वी विल ऐड देम. ऐड किसको ऐड करेंगे? जो हमने स्ट्रेस 2 पार्ट में निकाला. फर्स्ट वी हैव कंसिडर द लोड, वी कैलकुलेट द स्ट्रेस. Then I have considered the movement or couple which is here. Then I have calculated stress. Likewise, deformation भी मैंने first I have considered the load and find the stress, deformation, and then I consider the movement and find the deformation. तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सेपरेटली कैलकुलेट कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, and you will get the total stress as well as the total deformation. ये तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हुई. अब क्वेश्चन इज कि व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर, जे मैं जहां पे क्यों डिस्कस कर रहा हूं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. रीजन इज, सपोज जहां पे ऐसे केस बनेंगे जहां पे जे आपकी कोई बीम है, जे मैं कैंटिलीवर बीम ही ले लेता हूं, राइट. सो दिस इज द पॉइंट ए, राइट. तो पॉइंट ए के ऊपर क्या है? बीम के ऊपर एक आपका ये आपका लोड है W एक्ट करता है, और एक आपका क्या है? कपल है M. इसी पॉइंट के ऊपर क्या है? लोड है, और इसी पॉइंट के ऊपर कपल है. मैं आपको कहता हूं कि थीटा ए फाइंड आउट कीजिए. थीटा मैक्सिमम at A and y maximum, ये आपने फाइंड आउट करना है, राइट. अब कैसे करेंगे? देखिए ये पॉइंट A था, दिस इज योर पॉइंट A. तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है? लोड इज आल्सो एक्टिंग, लोड इज एक्टिंग एज वेल एज द कपल इज एक्टिंग हियर. तो पहले हम थीटा की अगर बात करें, यहीं पे लिखेंगे. तो पहले हम सेपरेटली वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम स्लोप बाय यूजिंग द लोड ओनली, राइट. सिर्फ लोड ले लीजिए, और इसका जो लेंथ है वो भी तो लिख लो. लेंथ इसकी क्या है? L है, राइट. EI फ्लैक्चुरल रिजिडिटी है. तो पहले क्या करो आप, सिर्फ ये इक्वेशन है, पहले सिर्फ इसमें आप लोड कंसिडर करो W, राइट. दिस लेंथ इज L, A, EI इज कांस्टेंट. ये आपने याद रखना है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा. अगर नहीं लिखा तो समझ लीजिए ये EI आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट. तो मुझे बताइए, अगर मैं लोड के कंसिडर थीटा मैक्सिमम निकालना है, थीटा मैक्सिमम एट ए निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा? WL² अपॉन 2EI, राइट. यू अंडरस्टैंड? अब इसी तरीके से यही बीम है, मैं इसको दूसरे पार्ट में बना लेता हूं. ये पॉइंट आपका क्या है? A है, जहां से लेके जहां तक लेंथ कितना है? L है, एंड द कपल इज एक्टिंग हियर M. तो अगर कपल आपका एक्ट कर रहा है, यस, कपल इज एक्टिंग हियर, तो थीटा मैक्सिमम कपल का क्या आएगा?
थीटा मैक्सिमम एट ए ड्यू टू दिस कपल, ये मैंने फॉर्मूला आपको दिया था m इंटू एल अपॉन ई आई, राइट, यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से जो आपका बाई मैक्सिमम होगा, इसी तरीके से जो आपका बाई मैक्सिमम होगा, तो पहले इसकी थीटा की, तो मैं देख लीजिए मैंने सेपरेटली क्या किया, सेपरेटली स्लोप पहले लोड को कंसिडर किया एंड आई हैव कैलकुलेटेड द स्लोप विद द हेल्प ऑफ द लोड, दिस इज द स्लोप, एंड देन आई कंसिडर द मूवमेंट एंड आई फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एट पॉइंट ए बाई यूजिंग दिस फार्मूला। जो भी इनकी वैल्यूज दी होगी आप पुट कर लो, जहां पर तो वैल्यू नहीं दी है, एवरीथिंग इज गिवन इन द WL, राइट। तो मैक्सिमम स्लोप जहां पे क्या आ जाएगी एट पॉइंट ए, इनको क्या करना है, आपने ऐड करना है WL² अपॉन 2EI प्लस, पहले हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया और फिर हमने इसको ऐड कर लिया ML अपॉन EI। यू अंडरस्टैंड, समझ आ गया वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, you understand that? So you can get the problems when the different type of the loads are acting at a point, or you can say more than two loads, couple, extra. So these things are acting at a point, and if you want to calculate, the question is like this, that calculate the slope and the deflection at that particular point where the more than two loads or couples are acting there, then how you will calculate? So this is one more concept which you have to understand. तो क्या करेंगे, इनको आप सेपरेटली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, इसको आप सेपरेटली पहले आप डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए बाय कंसीडरिंग द लोड। ये आ गया फार्मूला आपके पास है कि जब लोड आपका पॉइंट लोड के ऊपर एक्ट करेगा, फ्री एंड के ऊपर पॉइंट लोड एक्ट करेगा, देन व्हाट इज द फार्मूला, यू नो दैट। आप उस हिसाब से उसका क्या करें, मैक्सिमम स्लोप निकाल लें। लाइकवाइज देन यू यूज द फार्मूला, यू फॉरगेट अबाउट द लोड, यू जस्ट सिंपली टेक द मूवमेंट और कपल ले लीजिए, और उसके ऊपर आप, जब कपल का फार्मूला है, जब मूवमेंट इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, देन इट इज ML डिवाइडेड बाय EI। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके जमा कर लें, एंड दिस इज द टोटल मैक्सिमम स्लोप यू विल गेट एट दिस पॉइंट। लाइकवाइज अगर आपने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है दोनों को इसी तरीके से करना है। तो क्या होगा, बाई मैक्स एट ए, फर्स्ट कंसिडर द लोड, सेपरेटली वी विल कैलकुलेट। तो पॉइंट लोड है, फ्री एंड है, कैंटिलीवर बीम है, फार्मूला आपके पास है, आपने मेमोराइज किया है। सो दिस इज इक्वल टू WL³ अपॉन 3EI। यू अंडरस्टैंड, दिस इज ये हो गया जब आपने ये इसको कंसिडर किया लोड को। अब ये मूवमेंट है आपका, तो मूवमेंट के केस में क्या होगा, जब आपका कपल एक्ट करेगा एट द फ्री एंड, तो उस वक्त वाई मैक्सिमम क्या होता है, इसका भी फार्मूला आपको दिया है, वाई मैक्सिमम दिस इज ML² अपॉन 2EI, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो इनको भी आप ऐड कर लीजिए, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए। सेपरेटली आपने कैलकुलेट की डिफ्लेक्शन दोनों का, और फिर दोनों को आपने ऐड किया। सो दिस इज द कंप्लीट टोटल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज WL³ अपॉन 3EI प्लस ML² अपॉन 2EI, यू अंडरस्टैंड। तो एक तो जे भी स्पेशल केस आपका ऐसा हो सकता है वेयर वी विल यूज द सुपरपोजिशन मेथड, ऐसे भी एक स्पेशल केस आएगा, आपको समझ आ गया। फार्मूले हमने वही यूज किए हैं, सिर्फ हमने ये देखा कि इसको हमने किस तरीके से, वी हैव टू फाइंड द वे, हमने रास्ता निकाला है कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इनको यूज करेंगे। तो ये एक स्पेशल केस ये हो गया कि ऐसा भी स्पेशल केस डायरेक्ट फार्मूले में आ सकता है। तो अगर ऐसा केस आए, क्या करना है, इस प्रॉब्लम को आपने पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहले आप
अगर लोड है तो लोड के हिसाब से डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाल लीजिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करके। अगर साथ में कपल दिया है तो कपल के हिसाब से निकाल लीजिए, राइट। तो कपल और लोड ही होगा जहां पे, और इससे अलावा तो कुछ होगा नहीं, राइट, पॉइंट के ऊपर। तो ये यूज करके सुपरपोजिशन मेथड जो भी है उसको आप इस्तेमाल करके, तो ऐसा अगर कोई स्पेशल केस आए तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। यू अंडरस्टैंड? अब ये तो हो गया, दिस इज क्लियर टू यू, ये तो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं उसी चीज के ऊपर। सो इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए सुपरपोजिशन मेथड आपको क्लियर हो गया कि अगर कैंटिलीवर बीम है, जो कोई भी बीम है, उसके ऊपर एक से ज्यादा लोड आपके एक्ट करते हैं, तो आपने क्या करना है, उनको सेपरेटली कैलकुलेट करनी है, वैल्यू उसको ऐड करना है। अब जो मैंने पहले ही स्टार्ट किया था, स्पेशल केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपके साथ। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से करना है। तो स्पेशल केस क्या था, वही था एक ये आपकी क्या है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, राइट, एंड दिस पॉइंट इज A, right, and this point is B। जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, A है, और जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज B। और इस पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट आप इसमें ले लीजिए, इस पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंट लोड W इज एक्टिंग, राइट। तो जैसे मैं पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था स्पेशल केस में, आज तक जो हमने फार्मूलास का जो ड्राइव किया है वो क्या ड्राइव किया है कि व्हेन द लोड पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, जब पॉइंट लोड जो है कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड के ऊपर एक्ट करता है, तो वी नो द फार्मूला। क्या फार्मूला था वो, क्या था कि अगर हमें थीटा ए मैक्सिमम निकालना है तो फार्मूला था आपका WL² अपॉन 2EI एंड YA मैक्सिमम is WL³ अपॉन 3EI। बट ये फार्मूला क्या था, इन केस ये फार्मूला यूज करते थे इन केस पॉइंट लोड W is acting at the फ्री एंड A। अगर आपका पॉइंट लोड W, जो पॉइंट लोड जो भी पॉइंट लोड है, इफ इट इज एक्टिंग एट द फ्री एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, then we can use these formulas for calculating that. But here the special case which I have taken here, इस special case में क्या है, that you have seen here that load is not acting at the free end. Here the load is not acting at the free end. It means where this load is acting,
it is acting somewhere on the beam. It is acting somewhere on the beam, but it is not acting at the free end. But we have to find. क्या फाइंड आउट करना है हमें? स्लोप और मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए फाइंड आउट करना है. बट लोड जो है आपका ए के ऊपर नहीं है. यू अंडरस्टैंड? लोड जो आपका एक्ट कर रहा है दैट इज नॉट एट द पॉइंट ए. लोड इज एक्टिंग समवेयर एट द पॉइंट somewhere on the beam, but we have to find the maximum slope and the reflection at the free end where the load is not acting. आप देखिए, जैसे मैंने अभी पीछे बताया भी था, लोड जहां पे आपका इस पॉइंट के ऊपर आपका लोड एक्ट कर रहा है, तो यू फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द बीम. तो जहां पे जो लोड एक्ट कर रहा है, तो जहां से तो आपको थीटा बी की वैल्यू मिलेगी ना. थीटा बी आप निकाल सकते हैं यही फार्मूला लगा के. लोड क्या है? डब्ल्यू. इसमें एल क्या है? लेंथ क्या है जहां से लेके जहां तक? बी स्क्वायर अपॉन 2EI. ये आपको दिया होगा. EI इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड दैट इज कांस्टेंट हियर. आपने क्या लेना है इस केस में? आई एम टेकिंग द कांस्टेंट. ये जो डायरेक्ट फार्मूला है इसमें सभी फार्मूले EI जो थी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दैट वी हैव टेकन द कांस्टेंट एंड वी ड्राइव द फार्मूला. तो इसी तरीके से जो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी है, क्योंकि लोड जहां पे एक्ट कर रहा है तो यू कैन यूज द डायरेक्ट फार्मूला. तो डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी वो भी आप निकाल सकते हैं. WB³ अपॉन 3EI. तो थीटा बी और बाई बी तो हमने निकाल सकते हैं बिकॉज द लोड इज एक्टिंग एट द पॉइंट बी. अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि बाई यूजिंग द वैल्यू ऑफ द थीटा बी एंड द बाई वी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ए एंड बाई ए. राइट? अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम थीटा बी और बाई बी की वैल्यू यूज करके हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ए एंड वाई ए. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो हमें इनकी वैल्यू यूज करके वी मस्ट नो द वे दैट हाउ वी विल यूज दिस वैल्यू एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा ए एंड वाई. यही एक कंसेप्ट है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं. आपको पहले मुझे बताइए जहां तक समझ आ गया. लोड क्या है? फ्री एंड के ऊपर नहीं है. लोड क्या है? समवेयर ऑन द बीम है. लेकिन आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन फ्री एंड के ऊपर निकालना है. तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला जहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द पॉइंट लोड इज नॉट एक्टिंग एट दिस पॉइंट. फ्री एंड के ऊपर नहीं है. पॉइंट लोड इज एक्टिंग समवेयर देयर. तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब देखिए इसमें कैसे हम करेंगे. जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. मींस जे तो हम निकाल लेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? थीटा बी एंड वाई बी विल कैलकुलेट. ये तो निकल जाएगा आपका. यू कंसिडर दिस पार्ट ऑफ द बीम. पॉइंट लोड इज एक्टिंग हियर. यू फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट. और जहां पे आप फार्मूला लगा के थीटा बी एंड बाई बी यू हैव फाइंड आउट. आप देखिए इसको मिटाना पड़ेगा मुझे. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट समझने के लिए हमें क्या करेंगे आप? यू नो दिस फार्मूला. आपको ये फार्मूला पता है. यू नो दिस फार्मूला. वी हैव इन द डबल इंटीग्रेशन मेथड वी नो दिस फार्मूला इज दिस इक्वेशन EI to d square y upon dx square. This is equal to m. You understand this? Right? तो इसके आप लिख लीजिए पहले ABC. राइट? EI d square y upon dx square. तो अगर मैं सिर्फ y की बात करूं कि हमने क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है. जहां से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डिफ्लेक्शन करते हैं. तो y की बात करूं मैं तो क्या आएगा? ये आपका 1/EI, या उसको EI को उधर ही रहने दो, कांस्टेंट है. ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू dx. राइट? यही फार्मूला है. पहले एक दफा इंटीग्रेट करो तो आपको dy/dx मिलेगा. दूसरी दफा इंटीग्रेट करेंगे फिर आपको y मिलेगा. इसलिए दिस इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो ये आपका कांस्टेंट है. चाहे तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको भी
जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ ये देखना है कंसेप्ट क्या है, एम डी एक्स। यू अंडरस्टैंड? अब मुझे देखिए, हम क्या करेंगे, जहां पर तो लोड है नहीं, लोड है बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, मैं एक सेक्शन ले लेता हूं, दिस इज सेक्शन। तो बी पॉइंट से इस सेक्शन का जो डिस्टेंस है यह कितना है, एक्स, एट द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी, राइट। तो मुझे बताइए मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट एट बीसी, बीसी के ऊपर अगर हमें मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट एट बीसी क्या होगा, दैट इज W इंटू एक्स, राइट। मूवमेंट एट बीसी, दिस इज इक्वल टू so movement between B and C या मूवमेंट एट दिस सेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसको पॉजिटिव लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड का कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ले लेता हूं मूवमेंट क्या है आपका, W इंटू एक्स। W इज द लोड एंड x इज द डिस्टेंस। तो मूवमेंट ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव लिख लेगा, कोई बात नहीं है, राइट। तो WX only we have to see the magnitude, we have nothing to take the direction of this positive और नेगेटिव, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका मूवमेंट आ गया, राइट। अगर मैं पाई की वैल्यू निकालता हूं, तो अगर आप इसको इसमें पुट करते हैं, ई आई बाई इज इक्वल टू, एक दफा इसको इंटीग्रेट करें, चलो पहले दोनों लिख लेते हैं, W इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस लिख लो, रहने दीजिए माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वी डोंट नीड, राइट। मुझे बताइए जब आप एक दफा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा W एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, राइट। और जब इसी इक्वेशन को दूसरी दफा इंटीग्रेट करेंगे, राइट, तो दूसरी दफा इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका आएगा ये, और अगर ये सेकंड दफा इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आपको आएगा W एक्स क्यूब अपॉन 6। तो आपने देखा कि ये जो y की इक्वेशन है, ये जो y डिफ्लेक्शन जो आपका है, बिकॉज EI इज द कांस्टेंट, ये इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा आपको। तो क्यूबिक इक्वेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि हमें जो हमारी इलास्टिक कर्व है, इलास्टिक कर्व क्या है, दैट इज द डबल इंटीग्रेशन, दैट इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन। इलास्टिक कर्व को क्या बनेगी हमारी, जो हम डिफ्लेक्शन का डबल इंटीग्रेशन करेंगे, सो इलास्टिक कर्व इज द बीम, द डबल, सॉरी नॉट डिफ्लेक्शन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ द मूवमेंट। सो इलास्टिक कर्व, दिस इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द मूवमेंट। तो जब मैंने डबल इंटीग्रेशन मूवमेंट को किया, तो हमारी जो इलास्टिक कर्व क्या होगी, क्यूबिक पैराबोला, जहां पे लिख लीजिए इलास्टिक कर्व इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ मूवमेंट। इलास्टिक कर्व इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द मूवमेंट m। तो जो मूवमेंट m का जो मैंने डबल इंटीग्रेशन किया, तो हमारी इलास्टिक कर्व क्या बनी, तो इलास्टिक कर्व आप कर सकते, कह सकते हैं इलास्टिक कर्व क्या थी, इलास्टिक कर्व क्या बनी, क्यूबिक पैराबोला, बिकॉज दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन है। तो बाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब, जहां पे अगर मैं बाई की डिफ्लेक्शन की बात करूं तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्या होगा, बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो जो हमारी इलास्टिक कर्व बनेगी वो क्या बनेगी, क्यूबिक पैराबोला। यू अंडरस्टैंड? तो इलास्टिक कर्व हमारी होगी दैट इज क्यूबिक पैराबोला, कहां से, फ्रॉम C टू B।
फ्रॉम सी टू बी। तो सी से लेके बी तक जो हमें कर्व मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, क्यूबिक पैराबोला। इसको मिटा दीजिए। तो ये आपको मिलेगी राशि कर्व, दैट इज द क्यूबिक पैराबोला। तो हम कर्व खींच लेते हैं। तो जहां से ये कर्व आपकी आ गई, राइट, तो दिस इज क्यूबिक, मैं लिख लेता हूं क्यूबिक पैराबोला, राइट। इलास्टिक कर्व फ्रॉम क्यूबिक पैराबोला फ्रॉम सी टू बी, ये आपकी इलास्टिक कर्व है क्यूबिक पैराबोला। जहां तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी इलास्टिक कर्व थी, दिस इज द क्यूबिक पैराबोला, वो किस लिए, क्योंकि जो हमारी डिफ्लेक्शन थी, इलास्टिक कर्व जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, दैट इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द मूवमेंट। तो जो डबल इंटीग्रेशन जब मैंने मूवमेंट का किया, जो हमारा, बिकॉज द लोड इज एक्टिंग हियर, आई हैव टेकन द सेक्शन बिटवीन द बी सी एंड फाइंड द मूवमेंट बिटवीन द बी एंड सी। तो हमारा मूवमेंट आया था जहां पे W इंटू एक्स। तो इसका जो डबल इंटीग्रेशन किया मैंने, सो दैट इज इन द क्यूबिक फॉर्म। जो इक्वेशन मुझे मिली आफ्टर इंटीग्रेशन, सो आई हैव गॉट द क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन जो है हमें क्या रिलेट करेगी, बिकॉज द डिफ्लेक्शन जो हमारी होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, डिफ्लेक्शन इज proportional to x cube, so we will get the elastic curve which is the cubic parabola, that is from C to B। ये मैंने ड्रा कर दिया। You understand? जहां तक क्लियर है। अब देखिए इसके आगे आ जाइए। अब मुझे बताइए, नाउ आई विल टेक द सेक्शन हेयर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मैं सेक्शन ले लेता हूं, राइट। तो मुझे ये बताइए, जो एम की मूवमेंट बिटवीन ए एंड बी वो क्या होगा, व्हाट इज द मूवमेंट हियर, जीरो, बिकॉज ए और बी के बीच में लोड ही कोई नहीं, देयर इज नो लोड देयर। तो आप कह सकते हैं मूवमेंट बिटवीन ए एंड बी, फर्स्ट यू हैव टू टेक द सेक्शन, ऐसे लिखना है। ये आपका क्या लिया मैंने, ये सेक्शन है, तो टेक द सेक्शन बिटवीन ए एंड बी, राइट। और मूवमेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, एम ए बी। मूवमेंट बिटवीन ए एंड बी दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन था भाई वो क्या था, डबल इंटीग्रेशन ऑफ m मीन्स जीरो। ये रहने दीजिए, ई आई क्या करना है, चलो लिख देते हैं, राइट। डबल इंटीग्रेशन ऑफ m, तो m की क्या वैल्यू आई जहां पे, व्हाट इज m, ये आपका m था, दिस इज जीरो। मूवमेंट आपका क्या है, जीरो, तो जीरो कर लीजिए। अब देखिए जब इसको हम पहला इंटीग्रेशन करेंगे जीरो का, तो एक जे तो लगेगा ही, एक तो रहेगा। एक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमें आएगा, c इंटू डी एक्स, राइट, कांस्टेंट इंटू डी एक्स। जीरो के इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट इंटू डी एक्स। और जब हम इसको कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स। मतलब कहने का मतलब है वाई, ई आई वाई, हमें क्या मिलेगा, दिस इज एक्स। तो जहां पे आप देखिए जो डिफ्लेक्शन है, जहां पे क्या है, डिफ्लेक्शन जो है बाई क्या है डिफ्लेक्शन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब ये बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, व्हाट डज इट मीन्स यू विल गेट, ये जो हमारी इलास्टिक कर्व होगी, क्योंकि इलास्टिक कर्व क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ द मूवमेंट। तो डबल इंटीग्रेशन जब मैंने मूवमेंट किया इस पार्ट में, ए बी के पार्ट में, जब मैंने डबल इंटीग्रेशन मूवमेंट का किया तो हमें क्या मिला,
हमें एक लीनियर इक्वेशन मिली। कौन सी इक्वेशन मिली? लीनियर इक्वेशन मिली। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्लोप है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो क्या होगा, हमें ये आपका जो था दिस इज डिफ्लेक्शन, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, आगे लीनियर होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो स्लोप हमारा जो डिफ्लेक्शन है हमारा लीनियर होगा, कांस्टेंट होगा। तो जहां से जहां तक ये, तो ये हमें कैसी लाइन बनेगी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन मिलेगी ये, दिस विल गेट द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर। तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये आप बता दीजिए। तो हमें डिफ्लेक्शन क्या मिलेगी, स्ट्रेट मिलेगी, राइट। और स्लोप आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। डिफ्लेक्शन हमारी स्ट्रेट लाइन होगी और जो स्लोप होगी वो कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर डिफ्लेक्शन आपकी क्या है, डिफ्लेक्शन जो आपकी होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट, एंड स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप आपका क्या होगा, स्लोप इज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है, जो स्लोप आपकी ये पॉइंट बी डैश ले लीजिए आप, राइट। जो ये आपका ए डैश हो गया, जो स्लोप आपकी इस पॉइंट के ऊपर होगी वही स्लोप आपकी इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर होगी। बिकॉज द स्लोप इज कांस्टेंट, डिफ्लेक्शन इज स्ट्रेट लाइन, राइट। तो डिफ्लेक्शन इज स्ट्रेट लाइन और लीनियर, तो स्लोप आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जो आपका स्लोप थीटा बी होगा, जो आपका स्लोप आप थीटा बी निकालेंगे वही स्लोप आपका क्या होगा, थीटा ए होगा। ये पॉइंट क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो इसमें आपको एक चीज मिल गया कि अगर चाहे लोड आपका जहां पे एक्ट करे, ए के ऊपर एक्ट करता है पॉइंट लोड, फ्री एंड के ऊपर, या एनीवेयर समवेयर ऑन द बीम, जो स्लोप आप उस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे जहां पे लोड एक्ट कर रहा है, समवेयर ऑन द बीम। जैसे लोड आपका जहां पे एक्ट कर रहा था पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर लोड नहीं था, एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के ऊपर जो आपकी स्लोप होगी वो आपकी वही स्लोप होगी जिस पॉइंट के ऊपर आपका लोड एक्ट करेगा ऑन द बीम। तो बीम लोड के ऊपर थीटा बी के ऊपर था, तो आपने स्लोप किसका निकालना था, ए का निकालना था। तो ये पहली चीज आपकी प्रूव होगी कि वी कैन यूज द फार्मूला। फार्मूला तो यही यूज करने पड़ेंगे हमें, थीटा बी और बाई बी की मदद से वी हैव टू फाइंड थीटा ए एंड बाई ए। तो थीटा बी के हेल्प से वी हैव फाउंड आउट दिस थीटा ए। तो जहां पे पहला, तो ये पॉइंट आपको ये फार्मूला याद रखना है, किसी भी बीम के पॉइंट के पर जहां पे लोड होगा, सपोज लोड जहां पे नहीं था, लोड आपका जहां पे है कहीं भी है, राइट। तो जो स्लोप आपकी इस पॉइंट के ऊपर होगी, राइट, वही स्लोप आपकी इस पॉइंट के ऊपर होगी। तो पहली चीज क्लियर है, ये फार्मूला याद करिए, थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ए। तो इसलिए अगर हमें थीटा ए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले थीटा बी निकाल लेना है, जिस पॉइंट के ऊपर आपका लोड है वहां से आप थीटा बी निकाल लीजिए, और जो आपका स्लोप वहां पे उस पॉइंट के ऊपर निकलेगी वही स्लोप आपकी फ्री एंड के ऊपर होगी। पहला केस इज ओवर, राइट। फर्स्ट ये चीजें क्लियर हो गई आपको, दिस इज क्लियर। वाई थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ए, बिकॉज द डिफ्लेक्शन इज लीनियर। जहां से जो डिफ्लेक्शन जो हुआ वो आपकी स्ट्रेट लाइन में होगी, और जो आपकी स्लोप पॉइंट बी के ऊपर होगी, जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
तो जो स्लोप आपकी बी के ऊपर होगी सेम स्लोप आपकी ए के ऊपर होगी, फ्री एंड के ऊपर होगी। तो पहला पॉइंट इज ओवर। अब दूसरा हमें निकालना है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट ए बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ y, राइट। बाई भी तो आपने निकाल लिया, जैसे आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा के थीटा भी निकाला था, वैसे ही डायरेक्ट फार्मूला लगा के आपने बाई बी को फाइंड आउट कर लिया, ये तो हो गया। अब बाई बी को यूज करके हमें वाई ए निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो जे है, तो मुझे बताइए जे जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम टी ए, दिस इज इक्वल टू बाई ए डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए, ठीक है, वाई ए। जे आपका बीम था, जे आपकी जहां तक आ गई, तो जे आपका क्या हो गया, वाई ए। अब मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो होगी, जो इस पॉइंट के ऊपर होगी, सेम स्लोप आपकी इस पॉइंट के ऊपर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप आपकी क्या थी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाएगी ये, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो आपकी, मैं इसको तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, राइट। जो ये आपकी है, ये मैं कह देता हूं एल डैश है, राइट। ये आपका क्या है, ये तो बी डैश है, मैं इसको ओ डैश ले लेता हूं सपोज। और ये जो जहां से लेके जहां तक जो हाइट है वो क्या है, मैं कहता हूं ये आपकी हाइट एच है। तो क्यों निकाला मैंने, देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड। अगर मैं इस फिगर को कंसिडर करूं, इस फिगर को ध्यान में रखूं, तो मैं अगर वाई ए को इन टर्म्स ऑफ वाई बी लिखना चाहूं, तो मुझे बताइए ये बी पॉइंट है, जहां से लेके ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो किया है, जहां से लेके जहां तक जो है, ये आपकी स्लोप क्या है, वाई बी है। जहां से लेके जहां तक इलास्टिक कर्व के ऊपर वर्टिकल डिविएशन ऑन द इलास्टिक कर्व, तो वाई बी की स्लोप जो है वो क्या है, जहां से लेके जहां तक। तो वाई बी आ गया, वाई ए इज इक्वल टू वाई बी, जे डिस्टेंस जहां से लेके जहां तक। अब बात आ गई इस डिस्टेंस की, तो मैं कहता हूं जहां से लेके जहां तक, देखिए ये है स्लोप आपकी कांस्टेंट है, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो वाई बी जहां पर होगा, जे भी वाई बी के बराबर होगा, यू अंडरस्टैंड। जे डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू द वाई बी, तो जे आप ले लीजिए, दिस इज वाई बी, बिकॉज दिस इज ए ऑलमोस्ट रेक्टेंगल टाइप, ऑलमोस्ट इट इज एग्जैक्टली रेक्टेंगल, बिकॉज जे हॉरिजॉन्टल है, तो जे हाइट और जे हाइट बराबर होगी। तो इफ दिस इज वाई बी, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू वाई बी, तो जे हो गया वाई बी प्लस जहां से लेके जहां तक मैंने वैल्यू ले ली है एच, राइट। जहां तक क्लियर हो गया आपको, बाई ए दिस इज इक्वल टू बाई बी प्लस एच, ये समझ आ गया पॉइंट। कैसे, दोबारा देख लीजिए, मैंने ये जो स्लोप वाला पॉइंट था, जहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की और जहां पे मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है। क्यों ये हॉरिजॉन्टल, बिकॉज अवर स्लोप इज कांस्टेंट। जो स्लोप आपकी पॉइंट बी के ऊपर है वही स्लोप आपकी पॉइंट ए के ऊपर है। जहां तक क्लियर, स्लोप इज कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। अब देखिए, अगर जहां से लेकर जहां तक जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका मतलब अगर पॉइंट बी की जो स्लोप होगी, जो है ना पॉइंट बी, इसकी भी तो स्लोप होगी ना, बाई बी मैं कैलकुलेट किया डायरेक्ट फार्मूला लगा के, तो इसकी स्लोप है जहां से लेके जहां तक। क्यों, क्योंकि ये इलास्टिक कर्व के ऊपर वर्टिकल डिविएशन होना चाहिए। तो वर्टिकल डिविएशन क्या है, इलास्टिक कर्व, जे पॉइंट बी, तो जे डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू बाई बी, और जे डिस्टेंस मैंने लिया है एच। अब देखिए जहां पे एंगल कौन सा है, दिस इज थीटा बी, क्योंकि ये स्लोप है, राइट। तो अगर मैं जे ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, एल डैश बी डैश ओ डैश, एल डैश बी डैश, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, एल डैश बी डैश ओ डैश, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं आपको कहता हूं
H divided by this L dash B dash, this is equal to tan theta B, राइट? समझा गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base, this is sin theta, so this is perpendicular and this is your base. ये एंगल थीटा जहां से बन रहा है तो this is base, this is perpendicular, तो tan theta b, this is equal to h upon l dash v dash. Therefore h is equal to l dash v dash into tan theta b, right? And if I say थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये जो आपकी स्लोप है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं जहां पे लिख सकता हूं h इज इक्वल टू l डैश v डैश इंटू थीटा बी। अगर स्लोप वेरी वेरी स्मॉल हो तो tan को आप क्या करें, इग्नोर कर लीजिए और सीधा थीटा बी लिख दीजिए, बिकॉज स्लोप थीटा बी इज वेरी वेरी स्मॉल। लिख लो आप, थीटा बी इज very small, थीटा बी इज वेरी वेरी स्मॉल। समझ आ गया ये? h इज इक्वल टू, तो आप देखिए जहां से, तो h इज इक्वल टू ये जो l डैश b डैश था, दिस इज इक्वल टू ए बी, बिकॉज इट इज पैरेलल एंड इक्वल, परपेंडिकुलर है दोनों। तो l डैश b डैश की जगह मैं ए बी इंटू थीटा बी लिख सकता हूं। यस, आई कैन राइट। तो आप मुझे बता दीजिए कि जो हमारा बाई ए है, दिस इज इक्वल टू बाई वी प्लस थीटा बी इंटू ए बी, थीटा बी इंटू ए बी। तो बाई ए मीन्स बाई मैक्सिमम एट पॉइंट ए। समझ आ गया जी कंसेप्ट? ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। आपने डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए निकालना था, पॉइंट बी के ऊपर लोड था, तो डिफ्लेक्शन का क्या फार्मूला होगा, बाई ए, दिस इज इक्वल टू बाई बी, ये आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस थीटा बी, ये स्लोप भी आपने कैलकुलेट किया होगा एट पॉइंट बी, थीटा बी इंटू ए बी, तो ए बी होगा ये लेंथ आपको दिया होगा, दिस लेंथ इज गिवन टू यू। जैसे यहां पे है ये लेंथ आपकी ए, ये लेंथ बीम की दी होगी कि कितनी लेंथ के ऊपर आपका ये लोड होगा, दिस लेंथ इज ए, जहां से लेके लाना, राइट? और सपोज ये लेंथ आपकी क्या है, बी है, ये तो मैंने लिखा है, ये ए भी लिखा है नीचे, राइट? तो ये दो फार्मूले हैं वेरी इंपॉर्टेंट। हियर यू हैव सीन हियर दैट व्हाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ थीटा बी एंड वाई वी मींस द slope and the deflection at the point somewhere on the beam where the load is acting, and we want to find the slope and the deflection at the free end. So by using these theta b and yv, we will be able to calculate the slope at the free end ya and theta a. तो थीटा ए तो थीटा बी के बराबर था, उसमें तो एक सिंपल आ गया आपका, और ये जो आपका था बाई ए, दिस इज इक्वल टू वाई बी प्लस थीटा बी इंटू ए बी। तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने डिटेल में हर चीज आपको क्लियर करके बताई कि अदरवाइज क्या था कि आप डायरेक्ट फार्मूला भी तो याद कर सकते थे। यू कैन रिमेंबर द डायरेक्ट फार्मूला कि अगर लोड वहां पे पड़ा है तो ये आपको निकालना तो किस तरीके से, थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ए ले लो एंड दिस इज इक्वल टू दिस ले लो, राइट? बट ये जो मैंने आपको पूरा क्लियर करके, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करके दिया है, तो उसमें से ये क्लियर हो जाती हैं चीजें कि अगर इस किस्म की प्रॉब्लम आती हैं तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप उनको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वी कैन सॉल्व इट, यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने काफी डिटेल में बार बार रिपीट करके किया है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? आप देखिए जहां तक क्लियर है, आई थिंक इसको मिटा देते हैं। अब कैंटिलीवर बीम की मैं अदर केस की बात करूं, ऐसे ही अगर मैं बाकी केसेस की बात करूं कैंटिलीवर बीम की, जो सारा मिटा देंगे, चाहे आपका जूडियल लोड है, जैसे ये है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, राइट? सो दिस इज योर कैंटिलीवर बीम,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। तो मैं इस पॉइंट तक आपका यूडीएल लोड है, राइट। इस पॉइंट तक क्या है आपका, ये डब्ल्यू पर मीटर यूडीएल लोड है, राइट। और आपको इस केस में भी ये जो सेम फार्मूला है, आपने थीटा ए निकालना है, तो इस केस में भी जो थीटा ए होगा, दिस इज इक्वल टू थीटा बी। तो क्या करेंगे आप, जहां तक सिर्फ कंसिडर करेंगे और थीटा बी निकाल लेंगे आप यूडीएल के केस में। स्लोप आपकी क्या आएगी, फार्मूला वही लगेगा जो इसका होगा, तो वो फार्मूला जहां पे पुट करें लगा के आप थीटा बी कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप बाई बी भी कैलकुलेट कर लीजिए, थीटा बी एंड बाई बी आपको मिलेगा एट द पॉइंट बी, राइट। आपने जो लोड है ये आपका कहां पे होगा, ये कहां पे होगा, इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा, राइट। तो जहां से आप मूवमेंट ले लीजिए, जो थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। जहां पे आपका ये पॉइंट लोड एक्ट करेगा, ये आपका यूडीएल है जहां से लेके जहां तक, तो पॉइंट लोड जहां पे एक्ट करेगा तो वहां पे आपका क्या होगा, थीटा बी होगा। तो वहां से आप ये निकाल लीजिए, इस तरीके से आपने निकालना है, राइट। तो कहने का मतलब है कि इस केस में भी आपका यही होगा। अगर आप कैंटिलीवर की उसकी बात करते हैं, हाफ लेंथ के ऊपर है या जितने भी है, इसमें बात करते हैं आपकी यूवीएल है, ये आपका यूवीएल लोड है डब्ल्यू, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो आपने निकालना, तो इसी तरीके से आप थीटा ए थीटा बी निकाल लीजिए, और जो आपका बाई ए होगा, बाई ए दिस इज इक्वल टू बाई बी प्लस थीटा बी इंटू ए बी, राइट। तो ये फार्मूला सभी आप लगा सकते हैं, सभी केसेस में ये फार्मूला लगेगा। अगर इसी तरीके से अगर आपका कपल भी इस तरीके से सेंटर में एक्ट करता है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ये आपका पॉइंट ए कैंटिलीवर बीम है, ये पॉइंट बी है जहां पे आपका कपल पॉइंट बी के ऊपर एक्ट करता है। तो जहां पे पॉइंट बी है, तो जहां पर आप थीटा बी बाई बी निकालें, थीटा ए एंड बाई ए, बाई यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट। तो ये जो बाकी इसकी साथ कंडीशंस थी, सभी के लिए एक जैसा ही आपको फार्मूला एक जैसा ही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और एक जैसे ही तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक दीज ये जो 3-4 जो स्पेशल केसेस मैंने करवाए, दिस इज क्लियर। अब इसमें थोड़ा आगे देख लीजिए। आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका टाइम थोड़ा ओवर हो गया है, राइट। तो 1-2 कंडीशंस हो रहती थी, उस कंडीशन को हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको करेंगे, और उसके साथ फिर हम इसको वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके जो जो हमने ये किया है, सो दैट उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं या डिफरेंट कंसेप्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो हम 1 बाई 1 करेंगे, सो दैट आपको जितने भी ये कंसेप्ट हैं डायरेक्ट फार्मूला के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आज हम यहीं तक ही लेक्चर को रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें अभी इसकी 1-2 कंडीशंस हो रहती है, जहां पे क्योंकि ये पहली जो कंडीशन हमने किया था वो क्या था कि लोड आपका कहां पे एक्ट करता है कैंटिलीवर बीम के, एनीवेयर ऑन द बीम, एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। बट अगर इसमें सेकंड केस ऐसा है कि अगर आपका लोड जो है, आपका लोड कहां पे है, फ्री एंड के ऊपर है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन एनीवेयर ऑन द बीम। उल्टा है कि कहीं भी बीम के ऊपर हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारा जो पॉइंट लोड है या जो भी लोड है हमारा, वो कहां पे एक्ट कर रहा है, एट द फ्री एंड। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, और उसके पीछे जो कंसेप्ट होगा
वो हम उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा 15-20 मिनट का ज़्यादा टाइम लग जाता तो थोड़ा लंबा हो जाना था। अदरवाइज मेरा आइडिया था कि मैं इसको आज ही कंप्लीट कर देता हूँ। तो जितनी भी ये स्पेशल केसेस जो इंपॉर्टेंट हैं, आपकी कंडीशंस हैं, तो वो करके तो उसके बाद न्यूमेरिकल के ऊपर डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लंबा हो गया है लेक्चर, तो थोड़ा सा बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लंबा लेक्चर वो देख नहीं पाते प्रॉपरली। तो मैं ये जो कंडीशन जो मैंने आपसे अभी इसके बारे में बताया, और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। एक तो लेक्चर प्योरली प्रॉब्लम्स का ही होगा, सो दैट वी विल एबल टू फाइंड to understand all the concept properly, right? So thank you very much. Today it is enough. Thank you.